Hi, all Scorpio people, all the Scorpio signs of this 12 zodiac signs. Welcome to my reading. I'll be doing a reading on Archangel Michael Oracle deck, Sword of Light. It's a deck of 44 cards. This is the deck. It's Archangel Michael Sword of Light Oracle deck. It's a deck of 44 cards. These are the cards. So you can see it as a moon sign, as a sun sign, and as an ascendant sign or rising sign. So this reading is for the Scorpio people. You can see it as a moon sign, जिसको हम लोग राशि बोलते हैं, और sun sign, जहाँ पे sun बैठा रहता है उस sign में, या फिर लग्न sign या लगन sign, जो ascendant sign बोलते हैं या फिर rising sign बोलते हैं, जो आपके हॉरोस्कोप चार्ट से आपको पता चल जाएगा, एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप चार्ट. सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी after shuffling my cards, I'll be picking up 3 cards. The messages will be from the spirit guide Archangel Michael. So here I start with your reading, Scorpio people. I'll be picking up 3 cards, so take them as a guidance. This reading will be a weekly reading, the current week that is going on. So take it as a weekly guidance, as a weekly prediction. So here I start with my reading. Card number 1. Card number 2, card number 3. Okay, so the first card is, these are the 3 cards that I've picked up. The first card is open your heart. The first card is open your heart. No one is perfect. No one is perfect. Stop judging yourself and others. Don't judge yourself and others also. Being judgmental is not good, and especially, you know, Scorpios are quite judgmental in their nature because it is ruled by Pluto in astrology. So they are quite judgmental people. So it's well mentioned, stop judging people and yourself too. कभी-कभी हम लोग अपने आप को बहुत जज कर लेते हैं, very hard, and we tend to judge other people also. ये ऐसा है, लेबल कर देते हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है. ओपन योर हार्ट, अपना हार्ट चक्रा ओपन कीजिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट. तभी लव, यूनिवर्स से जो लवफुल एनर्जीज है वो आप तक पहुँचेगी, वो आपके हार्ट को फिलअप करेगी. Open your heart because no one is perfect. Be compassionate to others. Don't judge others. Show your loving energy towards them. Show your compassionate energy towards them. Be kind to them. Okay? So stop judging yourself and others also. And let love heal this situation. कभी-कभी हम लोग जज करते हैं तो दूसरा इंसान अफेक्टेड हो जाता है, उसको बुरा लगता है. तो क्या होता है, इससे रिश्ता बिगड़ जाता है. तो मत बिगड़ने दीजिए रिश्ते को. रैदर फिल इट विथ लव. लेट लव हील दिस सिचुएशन. अगर आपका किसी के साथ कुछ अनबन हुआ है,
बातों में या एक्शंस में या जेस्चर्स में या फीलिंग्स में या मन ही मन में, तो उसे अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने माइंड को ओपन कीजिए एंड लेट लव गेट इनसाइड यू, because once you allow love to get inside you, fill you fully, it will automatically heal you and heal the situation as well, and also heal the other people. So please do that. It's a very, very positive thing. Please do that. Beautiful card it is. Okay, now the second card. This is a blessing in disguise. This is a blessing in disguise. Be patient and have faith that your angels have the situation under control. What will come is far better than you dared to dream. This is a blessing in disguise. Be patient. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है, अरे ये ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया उसके साथ, होना नहीं चाहिए था, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बाद में अगर देखते हैं हम लोग तो वो सही होता है, वो सही होता है। इसीलिए बोल रहे हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो जो हुआ सही हुआ और अच्छे के लिए हुआ, भलाई के लिए हुआ। हम लोग बोलते हैं ना ऐसा, वी डू से लाइक दैट, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, भलाई के लिए हुआ। सो जो अभी हो रहा है या फिर हो गया, उसको बुरी तरीके से मत देखिए, अपना नज़रिया बदलिए, चेंज योर पर्सपेक्टिव। ऐसा देखिए कि इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यू कुड लर्न समथिंग फ्रॉम अ नेगेटिव सिचुएशन और अ नेगेटिव थिंग, नेगेटिव फेज इन योर लाइफ। हम लोग सब सीखते हैं, पॉजिटिव से तो खैर अगर होता है तो अच्छा ही होता है, पर नेगेटिव से बुरा होता है, लेकिन हम लोग कुछ सीखते हैं, उससे कुछ सीख हासिल करते हैं। सो टेक इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। जो स्पिरिट गाइड्स है, एंजल्स है यूनिवर्स में, वो लोग हम लोग को हर टाइम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। सो नो दैट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट and have faith in yourself and have faith in the universe also. Universe always helps us. So have faith that your angels have the situation under control. ये आपके लाइफ में जो सिचुएशन चल रहा है अभी, वो उनके अंडर है, कंट्रोल में है। दे आर कंट्रोलिंग इट एंड मेकिंग यू सेफ और कीपिंग यू सेफ। What will come is far better than you dare to dream. जो हो गया वो शायद अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो आने वाला पल है वो बहुत अच्छा होगा। What will come is far better. आप शायद ऐसा इतना बेटर शायद सोचे भी नहीं, उससे भी बढ़िया होगा, ऐसा भी हो सकता है या ऐसा होगा। That's what this message is all about. What will come is far better than you dare to dream. So भरोसा रखिए अपने आप पे और यूनिवर्स पे, क्योंकि जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा, आपकी भलाई के लिए होगा। So have faith. Now moving on to card number 3. Yes, you are correct. Yes, you are correct. You have listened to your inner guidance and made a wise choice. Keep moving forward. अगर आप कोई डिसीजन लिए हैं, कोई चॉइस के बारे में डिसीजन लिए हैं, तो द मैसेज दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम आर्कएंजल माइकल इज यस, यू आर करेक्ट। आपने जो किया सही किया, अपने आप पे भरोसा रखिए। You are absolutely right, you are absolutely correct, you have listened to your inner guidance. Inner guidance एक ऐसा चीज़ है ना, inner guidance को अगर सुनेंगे तो आपका सब कुछ सही ही होगा। inner guidance, inner voice एक ऐसी चीज़ है,
और इसके लिए क्या करना पड़ता है? सबको इनर गाइडेंस, इनर वॉइस नहीं सुनने को मिलता है। और क्यों नहीं सुनने को मिलता है? क्योंकि दिमाग में बहुत शोर रहता है। लाइफ में, हम लोग की लाइफ में इतना सारा शोर है चारों तरफ, वो शोर दिमाग के अंदर भी होता है। इसीलिए अंदर का जो आवाज़ है वो सुनाई नहीं देता है। आपके बगल में खड़े होके दो इंसान अगर बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे, आप यहाँ पे गाना चलाए हैं गाना सुनने के लिए, आप क्या सुन पाएंगे गाना सही तरीके से? नहीं सुन पाएंगे। डिस्टर्बेंस होगा, बहुत नॉइज़ क्रिएट होगा, दिमाग और बिगड़ जाएगा। ये लोग भी बात कर रहे इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के, आप भी गाना नहीं सुन पा रहे ठीक से। तो क्वाइटन योर माइंड फर्स्ट, बी काम, बी कंपोज्ड, क्वाइटन योर माइंड, तभी जाके इनर गाइडेंस, इनर वॉइस जो है आपको सुनाई देगा। और इनर वॉइस अगर सुनाई देगा तो वही आपके लिए गाइडेंस होगा। इनर वॉइस हमेशा हम लोगों को गाइड करता है, सही मार्ग दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। दैट्स वाई इट्स बीइंग सेड यू आर करेक्ट, बिकॉज आपने सुना है आपका इनर गाइडेंस की आवाज़, एंड यू हैव मेड अ वाइज चॉइस। आपने जो डिसीजन लिया, जो चूज़ किया, वो बिल्कुल सही किया। क्यों ना? आपने अपना इनर वॉइस का जो गाइडेंस मैसेज था, यू हैव हर्ड दैट। So keep moving forward without any doubts. कोई डाउट्स मत रखिए, क्योंकि आपने जो किया सही किया या फिर सही कर रहे हैं। So keep moving forward. So this was all about the 3 cards for you Scorpio people. You can see it as a moon sign, as a sun sign, and as an ascendant sign or the rising sign for your reading. Take it as a weekly prediction. This is for this current running week. Take it as a weekly guidance. So see you again in the next video, in my next video. Thank you so much. Bye bye.